This meeting is being recorded. So any function without a name is anonymous function, and lambda is the function of that. Like how you will write lambda function, this is the simplest thing. Like take an example, like you are taking two number as a sum. Okay, you have written a one simple lambda function that lambda is taking two arguments, num1 and num2, and which is doing num1 plus num2. Okay, so this is the simplest form of the lambda is right now it is doing. Then we have filter. In filter, what we will do, we'll apply the lambda function, and there's a syntax of filter, and there is a iterable. Iterable means list, tuple, set, dictionary, your string, all are iterables. Iterables means where you can pass out any loop or anything, you can iterable. Any doubt in that? No. Okay. So now the same thing is map. You are performing map, the same anonymous function map, and the syntax is very similar. Like if you want to perform map, reduce, and the same way it is there. The thing is in the middle it is a lambda function. Okay, and on the front end side either will be map, either it will be filter, either it will be reduce, and in comma you have any iterable. This is the syntax at a high level. Okay. Okay. Now, if you want to use, like, take this as an example. Now, this is an example taken care for in a particularly a lambda. We are assigning a variable to a plus 10. Like, this is very simplest. You can consider like a is equal to a plus 10. So, when you perform addition is equal to 5, then what it will do? It will add 5 plus 10. It will become 50. Okay. Okay. The same way is lambda is doing AB. It is the simplest multiplication. 5 into 6 is 30. It is simplest A plus B plus C, simplest addition. 5, 6, 2. Like the simplest form, like instead of writing the complete function, we are writing, uh, you can say the smallest form that is readable for the code understanding perspective. Okay. Okay. Now, yesterday we are discussing about this thing, hash dot args or hash dot keywords args. Like uh, this this function is particularly when we are using hash dot args, what will come? Either will come tuple or either what will become list will come. So when you call it either result 10, 12, 10, 30, 40. So what we are doing, sum of that. Like 10 plus 20 is 30, the same way it is doing. 10, 30, 60 and 100. Any doubt? No. Okay. Now here either taking instead of sum args, here it's taking sum of keywords args. Keyword are star keywords argument. Some keywords are not values. Now instead of that, we are specifying keyword base value. A is equal to B is equal to 20, C is equal to 30, and on the basis of that, we are getting the values. But we are getting keywords dot values means whatever the values only we are getting, not the keys. That's why they have used this term, values only. Clear? Okay. If we don't specify this thing, it will come in the form of your dictionary. Okay. Now the same thing is there. Find the product of number. Now we'll take the example of your map, filter, and lambda things. Okay. Okay. Now take this as an example where you want to derive the number which is even or which is odd. Okay. This is the function for lambda I have written up. It is for if n divided by 2 is equal to 0. It's a even number. If n divided by 2 is not equal to 0 is not a even number. How will you perform? On the passing of list, and you are performing filter, and then bracket you are passing in another list. So in that way, you will derive that 1, 2, 3.
which number is even, which number is odd, it will show it to you. Okay. The same way upper lower function is also using it here. Okay. Now in that way filter is used. Now I'll give the example of map. Consider this is in a map. X is x plus x. Okay. So what it will do? Suppose my x is what? Consider this is an example of x. Where it is. This is the example, like you have 1, 3, 2, 3, 4. Okay. Now you are doing x plus x. What will you do? 1 plus 2 plus. You are just summing that. Okay. Okay. The same way x plus y, you are summing these two. Okay. Because we are taking list 1 and list 2, na? Hmm. Quadrables. Now we are taking x dot x. We basically 1.1, 2.2, 3.3, 4.4 in that it is there. Okay. So this is the way it is used. Any doubt? Clear. Okay. This is very commonly we use. Okay. So at a high level, like you just know the things like BAM filter lambda. You should know. Like till this I have covered now. This is bust. Okay. This you should must know Okay. before starting any project related to PySpark or anything related to the Databricks or anything related to the cloud. Like this is the you can say is the basic of Python. Okay. Now what now we are discussing, it is not a mandatory one. Okay, because even like till today date, I have read through that portion only, till this portion only. I have never gone through this portion. Even till that my even till my experience, like uh, at a high level, like I have cleared multiple interview internally as well as externally. If we at a high level, if you know these things now, it will be you can say you are good in rest of the things. Na? You are good in PySpark, you are good in SQL, you know 70-80% related to the Python and all the AWS aspects, you know, you will crack the interview because everybody is not perfect in every technology. Okay, so in that way you can do this thing. Okay. If you want to do this, I need to just go through. Before that, I will go through and then I'll tell you because Okay. otherwise, because these things even I don't know. Okay. Okay. Class and object and all, no? Yeah, classes, what is a class, what is inheritance? Because I need to go through. I will go through because sometime if somebody is asked, I should also know, or if I will tell you about that, whatever the learning on my area of that. Okay. So till this portion, you should cover this. Okay. Then Hmm. if I will go through in weekday time, and I'll go through this complete portion, and I'll cover in the next lecture. Okay. Whatever our next class will be there. Okay. Hmm. Okay. So today I will cover the PySpark rather than covering this. Okay. Okay. Uh, because it will, I do not want to waste your time because it will, I need to read it. Otherwise, I will not be able to understand. Correct. At a high level, whatever the basics of Python, which is needed, you are already know. Like you should know if else syntax, you should know loop syntax, you should know what is list tuple set dictionary, what is how you derive functions, how you write different functions in the practically in Python. Like at least this is the first thing. You should know whatever the data types in the Python. What are the different methods available in list? What are the different methods available inside dictionary, tuple? So at a high level, this is you can say this portion you should read 2 to 3 times
And this notebook is very handy. Like even I can say it is very handy. Like when I need to brush up the things, like before the interview perspective, I'll go through that, and it Okay. will go within 1 hour. I'll brush up all the things in Python. Hmm. So when every time you need it, just go to three times. So in that way, whenever you need it, you just brush up in 30 minutes. Okay. Whenever before the interview. Hmm. Okay, because PySpark and the rest of the things, you will be in practice, Hmm. so you will not forget. But this thing you need to before the interview, you can go through that. Okay. Okay. Hmm. Okay. You have this document, na? Huh, yeah. Okay. And today's session you are recording, no? Yes, yes, I'm recording. And yesterday's and today's like you put in YouTube so that Yes, in yes, case I will I'll do. go I through. will do. अभी है ना वीकेंड्स में थोड़ा सा टाइम नहीं होता है. हाँ. वीकेंड्स में बहुत सारे काम होते हैं, आपको भी पता है. ट्रू है. फैमिली टाइम होता है ना वो. एक्चुअली मेरे को लाइक मेरा मैनेजर बोला है लाइक डेटा ब्रिक्स एंड पाइस्पार्क मेरे को लाइक आना चाहिए सो दैट ही कैन गिव मी द पाइस्पार्क एंड डेटा ब्रिक्स प्रोजेक्ट. हाँ हाँ, मतलब यू आर वेरी वेरी वेल वर्स, और उनसे जब आप जाओगी ना तुम प्रोजेक्ट पे, जो काम कर रहे हैं ना उनसे भी अच्छा आता होगा. हाँ. I know, like people who do in the practical environment, they don't know the things. हम्म. Even when we are doing the informatical, same thing I was facing. Like the people who are having 5 to 6 years of experience, they don't know how to write the mapping. हम्म. They don't know how to copy the code from production to dev environment. Then I'll ask in some time how they have 5 year experience, how they can tell somebody that they have 5 year experience. ठीक है, मतलब the thing is that somebody doesn't get the exposure, like somebody got involved in like enhancement project, he didn't get the opportunity in that domain, but like but touch wood, like in my scenario na, I got new project everywhere I go. Whenever I join any organization, I got very brand new scratch project. Oh, that is a good thing actually. And that's why मेरा थोड़ा सा, या तो मेरे को एक्स्ट्रा लोड लेके करना पड़ जाता है हमेशा, हम्म. क्योंकि इवन डेटाब्रिक्स का प्रोजेक्ट मैंने स्क्रैच से किया, एडब्ल्यूएस का प्रोजेक्ट मैंने स्क्रैच से किया, और द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो एक बिग डेटा हेडूप हाइव स्पार्क का प्रोजेक्ट था, वो भी मैंने स्क्रैच से किया. ओके. मतलब जो मतलब इन्फॉर्मेटिका के बाद जो मेरे ऐसे प्रोजेक्ट आए, कुछ एनहांसमेंट के प्रोजेक्ट आए छोटे छोटे, और एट ए हाई लेवल बड़े प्रोजेक्ट ऐसे ही चले मेरे. ठीक है, ये ये कह सकते हो कि ये मेरे लिए एडवांटेज भी रहा है और डिसएडवांटेज भी रहा है. मेरी लर्निंग तो ज्यादा होगी, पर मेरी मेहनत बहुत ज्यादा लगी है. हाँ. ठीक है. कुछ तो तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. हाँ, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ये हाँ. प्रॉब्लम वो तो है, कह सकते हो. और मुझे क्या कह सकते हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ. थिंक इज गुड. हाँ. हाँ, बिफोर गोइंग टू दैट, लाइक आपको डेटाब्रिक्स का मैंने ओवरव्यू दे दिया था, पाइस्पार्क बता दिया था, कुछ डाउट था उसमें? हाँ. नहीं नहीं. अब मैं आपसे पूछूं, डेटा लेक क्या होता है? डेटा लेक क्या होते हैं? in in data lake like we'll be storing the large amount of unstructured data like वो data lake होता है like अच्छा, मेरे को आप डिफरेंस बताओ. डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक हाँ. में डिफरेंस बताओ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लेक? In data warehouse में like we will be storing the data for the corporate repository, no, like it will act as a corporate repository where we will be storing every data and the detail. But in data lake
whatever the raw data and all will be there, that will be storing it in the data lake. Then we will be using it for the ETL, like the transformation and all kind of work we will be using. But data warehouse में after the transformation, like the ETL work, we'll be storing the data in the data warehouse. सही है ना, और मैं गलत बोल दिया? आपने ना लेमन टर्म में बता दिया, मतलब इट्स यू कैन से as per general understanding it is correct, ठीक है. At a high level I will tell what is the difference between data warehouse and data like देखो, data warehouse basically क्या होता है, एक central repository होता है as you mentioned, where you put the data from different sources, apply the transformation logic and load it into the data warehouse. Okay, that is a you have tell. The same thing is you need to tell data warehouses is data warehouse is a central repository where the data from the multiple sources is you can say what is the term, time variant, integrated, and you can say subject oriented. मतलब this is a particularly definition term. पर हाँ, मतलब आपकी नॉलेज परस्पेक्टिव से दिस इज द डेटा वेयरहाउस ओनली. बट डेटा लेक क्या है? डेटा लेक जो आपने बोला ना कि सिर्फ रॉ में डेटा डाला और मैंने जैसे एजूर में डाला, एजूर ब्लॉब स्टोरेज में, वो एक डेटा लेक हो गया. स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा, दिस इज आल्सो अ डेटा लेक. बट द एक्चुअल इवन इन द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी डेटा आपका डेटा लेक में हो सकता है. ओके. ठीक है. जैसे आपने एजूर ब्लॉब स्टोरेज, एक रॉ, आप एक की रॉ बकेट है, एक आपकी फाइनल बकेट है. तो रॉ बकेट में भी तो आपका डेटा होगा और एक फाइनल बकेट में भी डेटा होगा. तो डेटा आपका वहां पर भी पड़ा होता है. ओके. ठीक है. तो दिस इज द हाई लेवल. तो डेटा लेक क्या होता है? डेटा लेक इज यू कैन से डेटा लेक इज दैट where we have structured, semi-structured and unstructured type of data is there. It is used for consumption for raw layer as well as it is used for the final layer also. And depending upon the use case, like if the person of data scientist want the data from data lake, so he can consume the data from data lake rather than consumpting to data warehouse. ओके. तो ये एक इसको है ना, ये बस इंटरव्यू क्वेश्चन है. डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक और डेटा लेक क्या होते हैं? अगर आपसे, क्योंकि डेटा ब्रिक्स आने का मतलब क्या था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा ब्रिक्स आया इसलिए था कि वो डेटा लेक बनाता है. ठीक है. डेटा लेक क्या है? लेक हाउस है. लेक हाउस क्या है? जो फीचर देता है डेटा लेक का भी और डेटा वेयरहाउस का भी. ओके. वो डेल्टा लेक है. वो डेल्टा लेक है, उसको लेक हाउस भी बोलते हैं. ओके. ठीक है. दिस इज वेरी मतलब इंटरव्यू में पूछते आज की डेट में आपने लेक हाउस में काम किया है? आपको पता ही नहीं हुआ लेक हाउस क्या होता है, तो हाउ विल यू आंसर? एक्चुअली में कुछ नहीं है. लेक हाउस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लेक. Basically क्या होता है कि like data lake and data warehouse, like we will be using for the storage, no? So lake house also be like storage in Databricks, no? no not in storage. Like lake house is basically एक intermediate storage layer होता है. Okay. That contains the feature of data warehouse as well as that contains the feature of data lake also. आप Okay. डेटा लेक पे एसिड ऑपरेशन नहीं कर सकते. डेटा लेक पे आप सीक्वल नहीं लिख सकते. Okay. या आपको अगर अपडेट चलाना है, कुछ चलाना है, यू कांट डू इट. होता है ये सिलेक्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है डेटा लेक के अंदर, बट अपडेट यू कांट परफॉर्म एसिडिक ऑपरेशन. एसिडिक ऑपरेशन इन एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी. I think I've discussed in past. मैं सिर्फ एक ब्रश अप के लिए बता रहा हूँ. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. These are very basic and very fundamental things. Okay. Okay. हमने कहाँ तक कवर किया था मेरे को रिमेम्बर भी नहीं है, क्योंकि हम फिर पाइथन स्विच हो गए थे. हाँ. To that.
I'll cover from beginning now. हाँ Well, then it will be better. Okay. I think what we have covered or not. Okay. I think this thing is not covered all. I think. हाँ हाँ this is not covered. Okay. Okay. But this is the first of the thing is like ये हमने कवर कर लिया था. इंट्रोडक्शन क्या होता है, अपाचे स्पार्क क्या होता है, स्पार्क की क्लस्टर क्या होता है, इंट्रोडक्शन डेटाब्रिक्स हो गया, डेटाब्रिक्स कंपोनेंट हो गए. ठीक है. अब आ जाते हैं हम आरडीडी पे. बेसिकली क्या होता है, आरडीडी क्या होता है, बिफोर जो डेटा जो आज के टाइम पे जो चल रहा है ना, वो चल रहा है इधर डेटा फ्रेम, और या तो आप स्ट्रक्चर डेटा पे काम कर रहे हो. स्ट्रक्चर डेटा मीन्स क्या बोलूं आपको, या तो आप बैच स्ट्रीमिंग में काम कर रहे हो या रियल टाइम स्ट्रीमिंग में काम कर रहे हो. ठीक है. तो दो तरह की आजकल चल रही है. ठीक है. तो आप देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये इसको चालू करने से पहले कट हाई लेवल में तुम्हें थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूँ. दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग. ये दिख रहा है आपको? देखो, अब सेंड भी किया है. नहीं सेंड नहीं करा, मैं आपको सेंड कर देता हूँ. ये लो. तो आपको एक्सेस कर पा रहे हो इसको? मिनट एक काम करता हूँ, आप है ना इस पे लॉग इन कर लो. आप इस पे ना अकाउंट बना लो. ओके. ये इस पे ना सिस्को पे, तो हम्म. यहीं से सेंड कर दिया करूंगा फिर मैं. ठीक है. ओके. हाँ. जीमेल आईडी आपकी एडेड है. ठीक है. ओके. आप कर लेना, बाद में कर लेना, मैं बाद में भेज दूंगा. ठीक है. अभी हाँ. के लिए मैं आपको लिंक दे देता हूँ. This is- किधर भेजो, लिंक्डइन पे भेज देता हूँ. आप लिंक्डइन चेक करते हो? लाइक मैं लाइक बहुत कुछ भेजा है आपको. हाँ हाँ, लिंक्डइन तो चेक होता है मेरा, डेली खुलता है. आपने बहुत कुछ भेज रखा है. लाइक मैं देखती हूँ ना डेटाबेस हाँ पाइप. हाँ, कोई नहीं कोई नहीं. वो आप मतलब एक जगह कलेक्टेड हो जाएगा. हाँ. ठीक है. आप देखो, ये इसको ऐसा समझो, दिस इज बाइबल ऑफ एवरी प्रोजेक्ट. ओके. ओके. ठीक है. अभी हम चलते हैं. देखो, अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना, मैं ये शायद मैं कवर कर चुका हूँ या नहीं कर चुका मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं फिर भी कवर कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. देन विल गो टू दिस दिस थिंग्स. ओके. ये आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए पहले. ठीक है. रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? ठीक है. रियल टाइम प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, देखो, आपके पास अलग अलग सोर्सेस से डेटा होता है. पहला, टेक दिस एज एन एग्जांपल, कि आपके पास सीएसवी है, एक्सेल है, या आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है, या आपके पास कोई ईआरपी है. डेटा को आप लेते हो, सोर्स में डालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, डेटा वेयरहाउस में डालते हो. डिफरेंट डिफरेंट डेटा मार्ट्स होते हैं और वो यूज होते हैं.
हम्म ये तो प्रोसेस आपको पता होगा, वेरी हम्म स्ट्रेटफॉरवर्ड इन्फॉर्मेटिका का प्रोसेस है। एनी क्वेश्चन इन दिस पोर्शन पहले हाँ बताओ। हाँ नो ठीक है, अब आया डेटा लेक वाला पोर्शन। डेटा लेक वाला पोर्शन क्या है कि आपके पास कुछ आ, ये है, स्ट्रक्चर डेटा भी है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, कुछ अनस्ट्रक्चर डेटा है। ठीक हम्म है, अब आप क्या कर रहे हो, अ, या तो इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, डेटा लेक में डाल रहे हो, ठीक है, फिर डेटा लेक में क्या कोई या तो अपाचे स्पार्क यूज कर रहे हो या डेटाब्रिक्स यूज कर रहे हो, उसके बैकएंड में आप क्या यूज कर रहे हो, डेटाब्रिक्स के बैकएंड में एडब्ल्यूएस है, या तो डेटाब्रिक्स के बैकएंड में या तो एजूर है, या डेटाब्रिक्स के बैकएंड में जीसीपी है। ठीक है, या आप इस डेटा को डेटा लेक को डायरेक्टली स्नोफ्लेक में लोड करा रहे हो एक डेटा वेयरहाउस में, या एक रेडशिफ्ट डेटा वेयरहाउस में लोड करा रहे हो। यहाँ तक क्लियर है? हम्म मतलब टिल दिस इज क्लियर और नॉट? हाँ क्लियर ठीक है, अब क्या है, इसके अलावा एक आजकल है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर आ चुकी है जो कि होती है डेटा गवर्नेंस। ओके ठीक है, डेटा गवर्नेंस क्या करता है कि आप उस डेटा को कैसे, डेटा क्वालिटी कैसे रखोगे, कैसे उसमें एक बेटर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो हम्म आजकल जो ये बहुत, आजकल आप देखोगे ना डेटा गवर्नेंस इंजीनियर की बहुत ज्यादा डिमांड है। ओके ठीक है, हम्म डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, आजकल सबसे ज्यादा डिमांड है डेटा गवर्नेंस इंजीनियर की। हम्म इधर मशीन लर्निंग इंजीनियर से भी ज्यादा डेटा गवर्नेंस इंजीनियर चाहिए, रिसोर्सेज कम है मार्केट में, ओ क्योंकि लोगों को पता नहीं है व्हाट इज डेटा गवर्नेंस। ठीक है, हम्म तो डेटा गवर्नेंस में एक तो वो सिक्योरिटी एक्सपेक्ट होता है, आई डू नॉट वांट टू गो टू दैट मच डिटेल। ठीक है, हम्म एक डीक्यू एक्सपेक्ट होता है, ठीक है, और एक बेसिकली एक बंदा होता है, उसे बोलते हैं डेटा स्टीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपका बिजनेस वाला बंदा भी हो सकता है या टेक्निकल वाला बंदा भी हो सकता है, जिसे अच्छी नॉलेज हो प्रोजेक्ट। हम्म ठीक है, वैसा काइंड काइंड ऑफ बंदा होता है। ठीक है, अब हम्म जो ये डेटा गवर्नेंस की लेयर में क्या होता है, इसी में हमारा एक डेल्टा लेक होता है, जो मैं आपको टर्म बता रहा था ना, डेल्टा लेक, डेटा ब्रिक्स जो आया है पिक्चर में, हम्म वो क्या करता है, लेक हाउस बनवाता है, उसे डेल्टा लेक बोलते ओके हैं। ठीक हम्म है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके, इवन एडब्ल्यूएस के अंदर भी लेक हाउस है। ठीक है, हम्म इवन एजूर के अंदर भी लेक हाउस है। ठीक है, हम्म पर डेटा ब्रिक्स इज मोर पॉपुलर, दैट्स व्हाई लोग इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके ठीक है, हम्म अब इसके अलावा अब क्या होता है कि अब अब ऐसा समझो, अब ये आपके पास दोनों केस के साथ है। अब देखो, इन्होंने क्या किया कि है डेटा, जो डेटा वेयरहाउस भी है और डेटा लेक भी है, और दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, डेल्टा लेक बना दिया। हम्म ठीक है, अब क्या बंदा क्या कर सकता है, डेटा साइंस वाला बंदा भी डेटा उठा सकता है, हम्म और एनालिटिक्स वाला भी बंदा उठा सकता है। हम्म एनालिटिक्स वाला मतलब, अगर किसी को रेडशिफ्ट से डेटा उठाना है और एक कल से डेटा वेयरहाउस से कोई भी रिपोर्टिंग के लिए डेटा उठाना है, जो कि अभी तक हम इन्फॉर्मेटिका में कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना, इन्फॉर्मेटिका में डालते डेटा डालते हैं और टैबलू वाले रिपोर्टिंग बना के दे देते हैं, हम्म यही कर रहे हैं ना अभी तक बीआई यूज केस में। हाँ ठीक करेक्ट है, अब क्या है, अब आपके पास कोई डेटा साइंटिस्ट यूज केसेस कहाँ होंगे, या तो डेटा लेक पे होंगे। हम्म ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि मैं डेटा लेक भी यूज करूं, डेटा वेयरहाउस भी यूज करूं, तो उसके लिए डेल्टा लेक है, जिससे क्या कर सकूंगा, मैं डेटा साइंस केस के भी यूज केसेस ले सकूंगा और डेटा एनालिटिक्स के केसेस भी ले सकूंगा। ओके आप समझ आया? हम्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है प्रोजेक्ट, मतलब आपसे रियल टाइम, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो ऐसा ही होगा। हम्म अभी तक आप देख लेना, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ऐसे ही होंगे, ओके गोइंग ऑनवर्ड्स मिलेंगे भी जो आपको। नॉर्मल या तो प्रोजेक्ट होगा वो डेटा वेयरहाउस बेस्ड होगा, हम्म या तो प्रोजेक्ट होगा जो कि सिर्फ डेटा लेक बेस्ड होगा, या तो ओके प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसमें डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक को यूज करके लेक हाउस बना रहे होंगे।
Okay. Mm-hmm. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू वेरी बिगली क्वेश्चन कि डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक और लेक हाउस का डिफरेंस पता है आपको? Mm-hmm. ठीक है, तो Hmm. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ डिजाइन। Okay. Mm-hmm. ठीक है, कोई भी आपसे प्रोजेक्ट पूछे ना तो अपने प्रोजेक्ट का नाम उठाना। Hmm. ठीक है, Hmm. अभी तक के जितने प्रोजेक्ट, जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं, आपका Mm-hmm. पिछला प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड बताओ मुझे अभी। Okay. हाँ, Uh, वन में लाइक क्या था, सिनिक्रॉन था। उसमें क्या मैं क्या नॉट सिनिक्रॉन, मेरे को क्लाइंट याद नहीं आ रहा नहीं है। नहीं, मुझे वो बताओ कि क्या आर्किटेक्चर क्या था वो, कैसे करते थे आप, क्या क्या बीच में। जिप फाइल में लाइक हम लाइक डेटा सेंड करते थे, ओके। so I have to do like I have to unzip the file, then I have to store it in the like Azure storage, then हाँ। from there like I have to use in Azure Data Factory, like I have to use a transformation, so then I have to unzip and whatever like in that zip file, like however the data will comes, no, that data I need to load it actually. ओके। So based on the data, I have to compare and I have to load it. After that, I'll be pushing it into the Azure Blob storage. Azure Blob or the data lake storage. Like I have to push from the Databricks team, like Power BI team will be using it for the reporting purpose. तो आप देखो, आपका जो केस है ना वो ऊपर वाला केस है। Okay. देखो, हाँ आपने क्या करा, डेटा उठाया हाँ अलग अलग सोर्सेज से। अब हाँ। सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, हम्म सोर्सेज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हम्म हैं। ठीक है, आपने हम्म। डेटा को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करके डेटा लेक में डाला। हाँ डेटा करेक्ट। लेक इज योर एजूर ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, हम्म फिर उसको आपने प्रोसेस किया, किसमें किया, एजूर डेटा फैक्ट्री में। एजूर हम्म डेटा फैक्ट्री में प्रोसेस किया, बैकएंड में क्या चला, अपाचे स्पार्क चला। ठीक है, हम्म अपाचे स्पार्क चला, उसने बैकएंड में डेटा प्रोसेस किया, उसको डेटा को प्रोसेस करके कहाँ मारा, वापसी कहाँ दे दिया, डेटा लेक में दे दिया। हम्म डेटा लेक में दे दिया, डेटा लेक के बाद उसको मैंने कहीं पर किसी डेटा वेयरहाउस में सेव करा लिया, या तो वो मेरा एजूर एजूर का कोई डेटा वेयरहाउस है, या तो मेरा वो स्नोफ्लेक है, या तो मेरा वो एडब्ल्यूएस का रेडशिफ्ट है। हम्म डेटा वेयरहाउस में डेटा लोड हो गया। ठीक है, अब हम्म आपने डेटा क्या करा, आपने डेटा डेटा लेक में भी रख लिया और डेटा वेयरहाउस में भी रख लिया। क्यों रख लिया, कि अगर किसी को चाहिए कि अगर बीआई टीम को डेटा उठाना है, जैसे कि पावर बीआई टीम को डेटा उठाना है, तो वो डेटा वेयरहाउस से उठा ले। हम्म ठीक है, और अगर डेटा साइंटिस्ट टीम को उठाना है तो वो डेटा लेक से उठा ले। हम्म। पर आपके केस में डेटा लेक वाला सिनेरियो नहीं आया, तो अभी आपके बीच में ये वाली लेयर नहीं आई, बस सिमेंटिक लेयर वाली, गवर्नेंस वाली। ओके। ठीक है, रेस्ट हम्म थिंग यू आर डूइंग, तो एनी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। हम्म। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, सराउंडिंग यही रहेगा। ओके। ठीक है, आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे तरीके से, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग। ठीक है, हम्म। अब अब आता है कि अगर, अब मैं आपको एक छोटा सा और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये अगर ये क्लियर हो गया ना, तो एक हमारे पास एक तरह की और एक और भी होता है, जिसे बोलते हैं एक होता है बैच, हाँ। एक होता है बैच हम्म बैच डेटा, एक होता है स्ट्रीमिंग डेटा। हम्म ठीक है, हम्म। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ,
मैंने वो अभी भी वो करना भूल गया हूँ, फिर मैसेज आ रहा है 5 मिनट्स हुआ। हाँ मैं लाइक अगेन इस लिंक में ज्वाइन करना है ना? नहीं, आज के लिए ना हम क्लोज करेंगे। क्या, मैं थोड़ा सा ओके स्टेप आउट कर लूंगा, तो थोड़ा सा काम है। तो अभी मैं आपको सिर्फ बैच और स्ट्रीमिंग का डिफरेंस बता देता हूँ एट ए हाई लेवल। देन ओके टुमारो से हम नेक्स्ट लेक्चर से ना हम ये इस पे फोकस करेंगे। और हाँ वो जो पाइथन वाला पोर्शन है ना, वो मैं एंड में करूंगा, जब सब हाँ कवर हो जाएगा ना तब करूंगा, क्योंकि हाँ वो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कहीं नहीं चाहिए। ओके हाँ हाँ तो द थिंग इज क्या था, हाँ, ये ये आपको हाँ, बैच और स्ट्रीमिंग का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। बैच और स्ट्रीमिंग का जो डिफरेंस मैं बता रहा था, तो क्या होता है। दिस वन रिकॉर्डिंग एक्चुअली लाइक आप फ्री हो तो लाइक आज एंड में डाल दो सो दैट्स लाइक हाँ, वीकेंड में मैं मैं नोट करती आज हूँ। नहीं डालूंगा, तो मैं आपको सुबह मॉर्निंग में डाल दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। मैं ठीक है, एक्चुअली लाइक वीक हाँ, डे में लाइक वीक डे मेरे में को आप टाइम गो लगा थ्रू तो कर मैं लेना, जो भी हाँ डाउट हो विल डिस्कस। ओके, ठीक है। हाँ बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? बैच इज मतलब, ये भी एक प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर के टर्म में होता है, ठीक है। बैच का मतलब क्या होता है? जितने भी आज के जो प्रोजेक्ट अभी तक हम कर रहे हैं ना, हम्म इन्फॉर्मेटिका प्रोसेस और डेटा लेक प्रोसेस, हम क्या कर रहे हैं? बैच प्रोसेसिंग करते हैं। बैच प्रोसेसिंग मतलब कि 1 घंटे में चले, 30 मिनट में चले, 15 मिनट में चले, या तो माइक्रो बैचेस होते हैं या कुछ। रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम इज, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो, कि जैसे आपने एटीएम में पैसा डाला, आपका जैसे ही आपने विथड्रॉ किया, आपके पास इंस्टेंट मैसेज आ जाता है, हम्म 10,000 रुपीज स्वैप। ठीक है, इसे क्या हम्म बोलते हैं? रियल टाइम। ठीक है, तो ओ जो रियल टाइम होता है, रियल टाइम सोर्सेस क्या होते हैं? जैसे रियल टाइम सोर्सेस आजकल क्या डेटा होता है कि काफका से आपके पास डेटा आ रहा है, या आईओटी डिवाइसेस से डेटा आ रहा है। ठीक है, 90% इंडस्ट्री अभी भी बैच स्ट्रीमिंग पे काम कर रही है। कई रेयर सिनेरियो है कि 10-15% इंडस्ट्री अभी भी स्ट्रीमिंग में कर रही है। पर आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, स्ट्रीमिंग के हिसाब से भी। आई वर्क विद स्ट्रीमिंग ऑल्सो, मुझे पता है, मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगा पूरा। ठीक है, तो हम्म आपका, आप अपाचे काफका से डेटा रीड करते हो। ठीक है, उससे क्या होता है? आपके पास डेटा को रीड करके ना, आप क्या करते हो? उसको रीड करने के बाद उसको डेटा लेक में ले आते हो। ओके वो ठीक है, लाइक स्ट्रीमिंग डेटा में मतलब स्ट्रीमिंग डेटा को आप ले आते हो S3 बकेट में। ओके ठीक है, और हाँ फिर उसको क्या कर देते हो? स्ट्रक्चर लेआउट में ले आते हो। हम्म ठीक है, तो हम्म आई विल टेल यू द प्रोसेस, बट एट ए हाई लेवल आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह की डेटा होता है। एक होता है बैच, जो कि हम अभी तक कर रहे हैं, कि एक हम्म घंटे में चले, आधे घंटे में चले, 10 मिनट में चले, 15 मिनट में चले। हम्म रियल टाइम क्या है? विद इन नैनो सेकंड चले, विद इन माइक्रो सेकंड चले। वो स्ट्रीमिंग डेटा होता है। हाँ, मतलब ओके स्ट्रीमिंग मतलब आप जैसे डेटा आ रहा है उसी टाइप कैप्चर हो रहा है। ओके आप बैच में क्या हो रहा है कि 10 मिनट बाद हो रहा है, हम्म इधर 10 सेकंड में हो रहा है, नैनो सेकंड में हो रहा है, माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है, तो उस हिसाब से होता है। हम्म ठीक है, जैसे कि आपकी आईओटी डिवाइसेस है। आईओटी डिवाइसेस में एक टाइप में, जैसे आप एक एग्जांपल, आपकी बायोमेट्रिक एंट्री है। जैसे कई जगह होगा कि बायोमेट्रिक एंट्री होती है। हम्म बायोमेट्रिक एंट्री पता है ना आपको? हाँ हाँ वो लाइक और जैसे आप हाँ ऑफिस का समझो, कि हाँ ऑफिस का जैसे हमने एंट्री कार्ड स्वैप किया, जैसे ही हाँ कार्ड स्वैप किया उसकी एंट्री रियल टाइम चली जाती है, उसी टाइम हम्म वो 1 घंटे के लिए वेट नहीं करती है। हम्म ठीक है, तो उस डेटा को आप रियल टाइम बोलते हो।